لیکن جو روٹی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، پکائی تھی، اس کا پانی خشک نہیں ہوتا، آگ میں پانی خشک نہیں ہوتا۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے ایک روٹی کا عجیب واقعہ جس کو آگ نے جلایا تک نہیں، جس کو بیان فرما رہے ہیں قاری حنی ملتانی صاحب۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف، توجہ سے۔ جناب اما عائشہ صدیقہ سارے قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہائے 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 تندور میں روٹیاں لگا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا میری عائشہ آج ایک روٹی میں بھی پکاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں خادمہ موجود ہوں، میں آپ کی رفیق حیات ہوں، میں قربان جاؤں، میں پکاؤں گی، آپ روٹی نوش فرمائیں، تناول فرمائیں، میں پکاؤں گی۔ فرمایا نہیں، ایک پیڑا بنا کر گڑ کر مجھے دے دو، میں پکاؤں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیڑا بنا کر مجبوراً دے دیا۔ آپ نے اس کی روٹی بنائی اور تندور میں اپنے ہاتھ مبارک سے لگا دی۔ کافی وقت گزر گیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری پکائی ہوئی روٹی کبھی سے پک گئی، میں نے تندور سے باہر نکال لی، لیکن جو روٹی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، پکائی تھی، اس کا پانی خشک نہیں ہوتا، آگ میں پانی خشک نہیں ہوتا۔ تجھے کیا معلوم ہے جس چیز کو میرے ہاتھ لگ جائیں آگ اس کے قریب نہیں آ سکتی، جس چیز کو میرے ہاتھ لگ جائے وہ قریب نہیں آ سکتی آگ اس کے۔ اب یہ مسئلہ خود بخود سمجھ میں آ گیا کہ اگر نبی کے ہاتھ روٹی کو لگ گئے تو اس کی آگ قریب نہیں آئی، اور جس کے بستر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہوں، خدا کا قرآن آیا ہو، جبریل آتا ہو، خدا کے سلام آتے ہوں، ان کی آگ قریب کیسے آ جائے گی؟ خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارک کے کچھ حالات ذکر کر رہا تھا، اور اللہ حاضر ناظر ہے، نیت میری یہ ہے کہ تمہیں صدیق اکبر سے پیار پیدا ہو اور وہ پیار نجات کا ذریعہ بن جائے، نہ کسی کی مخالفت مقصود ہے، نہ کسی کی تائید و تردید مقصود ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کے بارے میں ساری کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے پیار کرے گا میں ان سے پیار کروں گا، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے دشمنی کرے گا کالی کملی والے نے فرما دیا میں اس سے دشمنی کروں گا۔ یہ حضرات اسلام کی جڑ ہیں، اسلام کی بنیاد ہیں، نبوت کے موقع کے گواہ یہ ہیں، قرآن اترنے کے گواہ یہ ہیں۔ جبریل امین کو انہوں نے دیکھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت انہوں نے کی۔ ارے یہ وہ لوگ ہیں جو 23 برس تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ اگر کوئی ان حضرات کو نہیں مانتا، اسے حق نہیں پہنچتا کہ کوئی یہ کلمہ پڑھے۔ اگر کوئی ان حضرات کو حق پرست اور صحیح نہیں مانتا، اس کو حق نہیں کہ وہ یہ نماز پڑھے۔ ان صحابہ کرام کو اگر کوئی نہیں مانتا، اس کو نہیں حق پہنچتا کہ وہ اپنے ماں باپ کے اس نکاح کو تسلیم کرے جو ان حضرات نے بتایا۔ قرآن کے موقع کے گواہ یہ ہیں۔ اور بڑھ کر عرض کروں، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی شکلیں بنا کر جبریل امین آیا کرتا تھا۔ تیری میری شکل پہ کوئی تھوکنے کو تیار نہیں۔ صحابہ کرام کی وہ پیاری صورتیں ہیں جو فرشتے بنا کر آتے تھے، کمال کے لوگ ہیں یہ۔ دنیا میں ایسا کوئی طبقہ نہیں
जिनकी जिंदगी में अल्लाह ने ये ऐलान करके भेज दिया हो, बेफिक्र होकर आखिरत की तरफ आ जाओ। दुनिया के क़यामत के दिन नामे आमाल तोल लूंगा, नेकी बदियों को जांचूंगा, पड़ताल करूंगा, किसकी कितनी नेकियां हैं, किसकी कितनी बदियां हैं, कितनी बुराई है। मेरे नबी के दीवानों, तुम्हारा मेरा पहले ही सौदा हो चुका। रज़ी अल्लाहु अन्हुम वरज़ू अन। तुम तो बिला हिसाबो किताब के जन्नत में जाने वाले हो। दुनिया ही में रजामंदी के तमगे अल्लाह पाक ने इनको अता फरमा दिए। कुरान करीम में भी ऐलान फरमा दिया, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह फरमाते हैं, मैंने तुमसे कारोबार कर लिया, मैंने सहाबा किराम के साथ धंधा किया, मैंने सहाबा किराम के साथ खरीदो फरोख्त की, मैंने अपनी रजा इनको दे दी, अपनी जन्नत इनको दे दी, इनका मालो जान मैंने खरीद लिया। किस अंदाज के लोग हैं, कितना बड़ा मर्तबा है, कितनी बड़ी शान है इन लोगों की। अल्लाह पाक जल्ले शानू ने इन लोगों की शान में ही फरमा दिया, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। ओ लोगों, अपने खात्मे का फिक्र करो, न जाने तेरी मौत कलमा पढ़ते हुए आएगी या कंजरी की गोद में आएगी। तुम अपना फिक्र करो, शराब पीते हुए मौत आएगी या कुरान करीम की तिलावत करते हुए मौत आएगी। तुम अपना फिक्र करो, सजदे में मौत आएगी या हराम मौत मरना पड़ेगा। तुम अपना फिक्र करो, मेरे नबी के दीवानों, मेरे नबी के परवानों, मेरे नबी की जानिसारों की तुम कोई फिक्र न करो। इन लोगों के दिलों पे मैंने ईमान लिख दिया, मिटाने वाली कोई ताकत है नहीं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या इन लोगों के मुताल्लिक इंसान बयान कर सकता है। खलीफा बना दिए गए, मुसलमानों के अमीर बना दिए गए, बादशाह बना दिए गए, और हालत ये है, मदीने की गली में एक आदमी सुबह सुबह आवाज लगाता है, हल अजीर, हल अजीर, है कोई मजदूर, कोई काम करने वाला मजदूर है। लाखों सहाबा किराम का सरदार, नबी का जानिशान, नबी का जानशीन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने आते हैं, फरमाने लगे, क्या काम कराना है? मैं मजदूर मौजूद हूं। मदीने का बाशिंदा कहता है, मेरी बकरी मर गई, मुर्दार हो गई, उसे उठाकर मदीने शहर से बाहर फेंकना है। सारा जमाना गवाह, सारे सहाबा किराम गवाह, अबू बकर सिद्दीक खलीफा बादशाह होने के बावजूद अपने कंधों पे मुर्दार बकरी उठाकर बाहर ले जा रहा है। 4 आने मजदूरी, 1 दिरहम लेकर मुसलमानों का बादशाह मेहनत करता है, मजदूरी करता है, मुशक्कत उठाता है। आजकल के बादशाह तुम्हारे सामने है, कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। और क्या कहना, एक जुमे से दूसरे जुमे तक की बादशाह मेरे हवाले करके देखो, मैं अपना सब कुछ रगड़ा लगा दूंगा। कौन बात आता है? ये लोग ऐसे थे। मदीना मुनव्वरा में एक बेवा औरत रहती है, आंखों से लाचार मोहताज है। जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे दिल में आया कि अब सिद्दीक अकबर तो बन गया बादशाह खलीफा, अब इंशाअल्लाह नेकियों में ज्यादा हाथ मैं मारा करूंगा, मैं नेकियां ज्यादा कमाया करूंगा। फारूक आजम फरमाते हैं, मैं मदीने की उस औरत के दरवाजे पे गया और मैंने आवाज लगाई, माई बर्तन ला, मैं पानी भर के ला दूं, और काम बता जो तेरे घर का हो, मैं वो करके जाऊं। जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अंदर से आवाज आई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे घर का सारा धंधा कोई और करके चला गया, मुझे खाना पका कर खिला के चला गया, मेरे बर्तन भी साफ करके रख गया, मेरे आंगन में, घर में, मेरे विले में झाड़ू बुहारी भी करके चला गया।
जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं हैरान हो गया, ये कौन है? सुबह सुबह तो मैं आया, ये रातों रात कौन करके चला गया? फारूक आजम फरमाते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगले दिन में और सवेरे आया, फिर भी बुढ़िया की तरफ से यही जवाब मिला, कोई और सारा काम करके चला गया। तीसरे दिन फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं तकरीबन रात ढली और मैं पहुंच गया। मैं दरवाजे पे पहरेदारों की तरह खड़ा हो गया, बैठ गया। मैंने देखा है कि नौजवान आया, दोनों कंधों पे 2 पानी के बर्तन भर के लाया। मैं बैठ गया, निकलते हुए को देखूंगा ये कौन है। अंदर गया, बेवा का सारा काम काज करके, आंखों से लतार मोहताज माई का सारा धंधा करके बाहर निकला। निकलते हुए का मैंने कपड़ा पकड़ के पूछ लिया तू कौन है? जवाब मिला, ओ मेरे फारूक भाई तंग ना कर, मैं तेरा भाई अबू बकर सिद्दीक हूं रज़ी अल्लाह तआला। ये तो वो लोग थे जिन्होंने बादशाहत करते हुए बेवा औरतों की आधी आधी रात को पानी भरे। कौन आज करेगा? किसी लाचार के काम आना, किसी के दुख में काम आना, अब तो ये मिजाज खत्म हो गया। हदीस पाक में इरशाद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई किसी बीमार को अल्लाह की रजा के लिए पूछने जाए, तबापुरसी के लिए जाए, उस वक्त से लेकर जिस वक्त वो पूछने गया था अगले दिन के उसी टाइम तक 24 घंटे 70,000 फरिश्ता उसकी बख्शिश की दुआ मांगता है। हमें इसी नेकी से क्या वास्ता है? कौन पूछे? अगर कोई बड़ा आदमी बीमार पड़ जाएगा तो चारों तरफ से लोग पूछने आएंगे, साहब बहादुर का क्या हाल है, साहब बहादुर का क्या हाल है, साहब का क्या हाल है? और साहब ठीक ठाक है, साहब को कौन सी फांसी लगी हुई है? गरीब बहन को पूछने कोई नहीं जाएगा, गरीब भाई को पूछने कोई नहीं जाएगा, गरीब खाला को पूछने कोई नहीं जाएगा, गरीब फूफी की हालत को मालूम करने के लिए कोई नहीं जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने बादशाहत करते करते भी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को जिंदा रखा। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन है, बादशाह है मुसलमानों के। 7.5 आने रोज की तनख्वाह है। घरवाली ने आटे की थोड़ी थोड़ी चुटकी बचा बचा कर वो आटा बेचा, मीठा मंगाया, चर्बी मंगाई। एक दिन खाने में थोड़ा सा हरीरा हलवे की शक्ल बनाकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी दे दिया। आज अगर हमें मौलवियों को कोई हलवा दे दे, जान बेशक चली जाए, पर हलवा तो वापस नहीं होने देना ना। कौन पूछे कहां से आया, कैसे कमाया, किस तरह मिला, कौन है तू? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह माशा। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्मे रुमान अपनी घरवाली से पूछा ये मीठा कहां से बना? हमारा खर्चा तो इतना मिलता है बैतुल माल से, उसमें तो एक चुटकी भी गुंजाइश नहीं रखी मैंने, इतना मीठा खाना तो बन ही नहीं सकता। मीठा बनाने की गुंजाइश ही नहीं, नबी के जानशीन के पास गुंजाइश नहीं, मस्जिद नबवी के इमाम के पास गुंजाइश नहीं, सहाबा के सरदार के पास गुंजाइश नहीं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इतनी गुंजाइश नहीं कि वो अपने लिए बच्चों के लिए कोई मीठा खाना बना ले। सिद्दीक अकबर ने पूछ लिया घरवाली से, बताओ ये खाना कैसे बना? तो कहने लगी बच्चे कई दिन से कह रहे थे अम्मा मीठा खाना, अम्मा मीठा खाना। मैंने एक एक आटे की चुटकी बचा बचा कर कई दिन जोड़ा, फिर वो आटा बेचा, चर्बी मंगा ली, मीठा बना लिया, थोड़ा सा आपको दे दिया, बाकी मैंने इन बच्चों को दे दिया। उसी वक्त पर्चा मंगवा कर बैतुल माल को लिख भेजा, इतना आटा मेरा कम कर दो, ज्यादा है जब तो बचा बचा करके हलवा बनाया गया है। मेरा इतना खर्चा कम कर दो, ज्यादा मेरे घर में खर्चा आता है जब तो घरवाली ने बचा लिया। अरे इन लोगों की कौन बात पूछेगा, इनके मामलात तो खुदा ने फरमा दिया मेरे सपुर्द हैं, सारे मेरे सपुर्द हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़ा अजीम आदमी, बादशाह सुलेमान मलिक का दामाद है।
फातिमा बिनते अब्दुल मलिक इसके घर में मौजूद है। अल्लाह अकबर, शायद बाहर से मिल जाए, कभी सुन के देखना, उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से केसट मिलेगी। बादशाह वक्त ने अपने मरते वक्त एक पर्चा लिखा और लिफाफे में बंद करके सर पर मोहर कर दिया कि मेरे बाद जुमे में खोला जाए, जिसका मैं नाम लिख कर जाऊं उसको खलीफा बादशाह बना लेना। आज तो इलेक्शन के जरिए बादशाह बनते हैं ना, वो जमाना इलेक्शन का नहीं था। जुमे के अंदर जब वो पर्चा खोला गया तो उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब नाम निकला, किताबों में लिखा है कि बेहोश होकर धड़म से जमीन पे गिर पड़ा। हाय, ये मेरे ऊपर क्या जाती हुई, मुझे कहां फंसा गए। इतनी अजीम ममलुकत का काम मैं अल्लाह और रसूल के हुक्मों के मुताबिक कैसे चलाऊंगा। जब लोगों ने जबरदस्ती कंधों पे डाल दिया तो सबसे पहले अपनी बेगम फातिमा बिनते मलिक से फरमाया, एक बात करो, सोच कर जवाब दो, मेरे घर में रहना है या अपने बादशाह के घर में रहना है, बाप के घर में रहना है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं अपने बाप के घर क्यों रहूं। तो फरमाने लगे कि अगर मेरे पास आओगी, ये जितना जेवर है, ये जितना बर्तन है, जितना सामान है, ये तेरे बाप ने बैतुल माल से लेकर दिया हुआ, तेरा इसमें कोई हक नहीं। तमाम जेवर, कान से लेकर पैरों तक, तमाम नाक का हाथ का ये जेवर उतार कर, ये सारे बर्तन कपड़े उतार कर वापिस बैतुल माल में दाखिल करो। सिर्फ तलने कपड़े पहन कर मेरे पास आ सकती हो, तमाम माल वापिस करो। कदरदानी का जमाना था। फातिमा बिन अब्दुल मलिक कहने लगी, उमर बिन अब्दुल अजीज, तेरी जात को मैं नहीं छोड़ सकती, अगर कहो तो चमड़ा उतार करके भी आ सकती हूं, तुझे मैं नहीं छोड़ सकती। सब कुछ करके वापिस खाली खाली उमर बिन अब्दुल अजीज के घर में आ गई। इतना तकवा था, इतना अल्लाह का खौफ था, इतना अल्लाह का डर था। एक बात कहता हूं, तवज्जो करके सोच लेना। फातिमा बिनते अब्दुल मलिक कहती हैं कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने जिस दिन से बादशाह बना था, कब्र में जाते वक्त मैं उसकी घरवाली थी, वो मेरा घरवाला था, मेरे सारे बदन को कभी हाथ तक नहीं लगा सका। इतना रोता था अल्लाह के डर से, अल्लाह के कहर से इतना डरता था कि उसके दिल में कभी ये ख्याल भी नहीं आया कि ये मेरी औरत है, मेरी बीवी है। ऐसे ऐसे लोग बादशाह करके गए दुनिया में। जब उमर बिन अब्दुल अजीज का आखिरी वक्त आया तो फातिमा बिनत अब्दुल मलिक 13 बच्चे लेकर पास आई कि जो कुछ मेरे पास था वो सारा बैतुल माल में दाखिल करा दिया, आप क्या छोड़ के जा रहे हैं इन बच्चों के लिए। खादिमों को फरमाया मुझे उठा के बिठाओ, और अपनी बीवी को सामने बिठा लिया। एक एक बच्चे से पूछा, क्या मैंने आपको कुरान पढ़ा दिया? कि जी हाँ। दूसरे बच्चे से पूछा, मैंने आपको कुरान पढ़ा दिया? कि जी हाँ। नमाज सिखा दी? कि जी हाँ। कलमा सिखा दिया? कि जी हाँ। सब बच्चों से पूछकर फातिमा को कहने लगे, मैंने हक अदा कर दिया, क़यामत तक का ठेकेदार मैं किसी का नहीं हूं। मैंने कुरान पढ़ाया, थोड़ा नमाज सिखा दी, कलमा सिखा दिया, बाकी मैं ये नहीं कर सकता कि बैतुल माल से माल उठाकर इन्हें बादशाह कोठियों बंगलों के इनको मैं मालिक बना के मरूं, मैं ऐसा कभी नहीं करने। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला जंगे तबूक का चंदा हो रहा है। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपील फरमाई, बड़ा लंबा सफर है, बड़ी गर्मी है, बड़ा लश्कर है काफिरों का, उससे जाकर मुकाबला करना है, जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा ले आओ। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मैंने सोचा कि लो आज मेरा दौर लगेगा, आज सिद्दीक से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैं बढ़ूंगा, इंशाअल्लाह सबकत ले जाऊंगा। फारूक आजम फरमाते हैं कि मैं अपने घर का सारा असबाब माल जितना था आधा ले आया, मैं आधा घर छोड़ाया, आधा मैं ले आया। उस्मान ज़िन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 900 ऊंट लाकर पेश कर दिए। जब आई बारी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, सारा घर का असबाब लाकर सामने रख दिया। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे सिद्दीक तू क्या लाया, घर में क्या छोड़ के आया? अबू बकर कहता है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी वजह से कुछ देर हो गई, मैं तो अपने घर की दीवारों पे भी हाथ मार के आया हूँ। मेरे नबी ने मांगा है चंदा, मेरे घर में सुई भी बाकी ना रह जाए।
ये हाल बना दिया परवाने को चराग, परवाने को चराग, बुलबुल को फूल बस, वो सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। मेरे घर की दौलत आपकी साथ है, मेरे घर में कोई चीज नहीं, मैं अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ कर आया हूं। क्या सोच है इन हजरात की। आखिर ये भी हम जैसे इंसान थे, इनके भी पेट था, इनके भी अल्लाह ताला ने सब कुछ लगाया हुआ था, बीवी बच्चों वाले थे। सब कुछ होते हुए मोहब्बत का पूरा प्याला जो लबरेज था सारा ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हवाले कर दिया, कुर्बान कर दिया। आज मेराज का महीना शुरू हो गया, रजबुल मुरज्जब आ गया, लेकिन याद रखो जब तक अबू बकर मेराज की तस्दीक न कर दे मेराज नहीं। जब तक हिजरत में खुद सिद्दीक अकबर साथ होकर तस्दीक न करे हिजरत नहीं। सिद्दीक अकबर को अगर निकालोगे कुछ भी नहीं बचेगा, कोई चीज बाकी नहीं रहती। इसलिए फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतना खुदा तरस इंसान था। मैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आम में से क्या कदर जानेगा, क्या कीमत जानेगा, हमें क्या मालूम है किस कीमत का आदमी था। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं यूं अपने घर के वेले में सहन में जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और जनाब अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खड़ी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं आसमान की तरफ निगाह उठाई, सितारों की तरफ। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी की नेकियां इतनी भी हैं जितने आसमान पे सितारे? किसी की नेकियां इतनी भी हैं जितने आसमान पे सितारे? आपने फरमा दिया, हाँ मेरी आयशा, मेरे फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा है। बात हो गई। हज़रत आयशा सिद्दीका ने अर्ज कर दिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मेरे महबूब, मेरे बाप का क्या हाल है? मेरे बाप का क्या हाल है? फैसला है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक का, सुनो और मजे लो। यूं फरमाया, मेरी आयशा, तूने मेरे सिद्दीक की बात छेड़ दी। आसमान के सितारों से ज्यादा नेकियां फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। और आगे सुनो, फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सारी उम्र की नेकियां एक तरफ और तेरे बाप की हिजरत वाली रात एक तरफ। फारूक आजम की नेकियां सारी उम्र की एक तरफ और वो मुश्किल रात, वो दुखों भरी रात, वो परेशानियों वाली रात, वो खतरनाक रात, हिजरत वाली तेरे बाप की उस एक रात का मुकाबला फारूक आजम की सारी उम्र की नेकियां नहीं कर सकती। अजीब खानदान है ये। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीका सारे कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हाय हाय हाय, तंदूर में रोटियां लगा रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, फरमाया, मेरी आयशा, आज एक रोटी मैं भी पकाऊंगा। सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं खादिमा मौजूद हूँ, मैं आपकी रफीक हयात हूँ, मैं कुर्बान जाऊं, मैं पकाऊंगी। आप रोटी नोश फरमाएं, तनावुल फरमाएं, मैं पकाऊंगी। फरमाया, नहीं, एक पेड़ा बनाकर गढ़कर मुझे दे दो, मैं पकाऊंगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पेड़ा बनाकर मजबूरन दे दिया। आपने उसकी रोटी बनाई और तंदूर में अपने हाथ मुबारक से लगा दी। काफी वक्त गुजर गया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरी पकाई हुई रोटी कभी से पक गई, मैंने तंदूर से बाहर निकाल ली, लेकिन जो रोटी
میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، پکائی تھی، اس کا پانی خشک نہیں ہوتا، آگ میں پانی خشک نہیں ہوتا۔ تجھے کیا معلوم ہے جس چیز کو میرے ہاتھ لگ جائیں آگ اس کے قریب نہیں آ سکتی، جس چیز کو میرے ہاتھ لگ جائے وہ قریب نہیں آ سکتی آگ اس کے۔ اب یہ مسئلہ خود بخود سمجھ میں آ گیا کہ اگر نبی کے ہاتھ روٹی کو لگ گئے تو اس کی آگ قریب نہیں آئی، اور جس کے بستر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہوں، خدا کا قرآن آیا ہو، جبریل آتا ہو، خدا کے سلام آتے ہوں، ان کے آگ قریب کیسے آ جائے گی؟ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے خواب دیکھا، آسمان سے ایک چاند اترا، میری گود میں آیا، دوسرا چاند آسمان سے اترا، میری گود میں آیا، تیسرا چاند آسمان سے اترا، میری جھولی میں آ گیا۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے یہ خواب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے ایسے ایسے کر کے خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر ارشاد فرمائیں، مطلب بتائیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ اس شرط پہ بتاؤں گا، کسی کو بتانے کی اجازت نہیں، تعبیر میں بتا دوں گا۔ حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پہلا چاند میں ہوں، آسمان سے اترا، تیری گود میں آیا، اس سے مراد یہ ہے کہ تیری گود تیرا حجرہ ہے، میری قبر تیرے حجرے میں بنے گی۔ دوسرا چاند ابو بکر صدیق آئے گا، تیسرا چاند فاروق اعظم آئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے جہان کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ گنبد خضرا کی جو زمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر مبارک ہے، جو زمین کے ذرات آپ کو گود میں لیے ہوئے ہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس زمین کے ذروں کا، اس زمین کے ٹلے کا عرش معلیٰ سے بھی زیادہ بڑا مقام ہے۔ اللہ پاک اگر چاہتا تو بیت المقدس میں قبر مبارک بنا دیتا، اگر اللہ پاک چاہتا تو بیت اللہ میں بنا دیتا، حتیم میں بنا دیتا، مینا میں بنا دیتا، عرفات میں بنا دیتا، آسمانوں پہ کسی جگہ پر آپ کا قیام ہو جاتا، جنت میں قیام ہو جاتا۔ لیکن اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے صدیق کی بیٹی اور میرے محبوب کی گھر والی، مجھے تو تیرے بستر پر، تیرے حجرے پر اتنا پیار آ گیا، اتنا کر کے خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر ارشاد فرمائیں، مطلب بتائیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ اس شرط پہ بتاؤں گا، میری زندگی میں کسی کو بتانے کی اجازت نہیں، تعبیر میں بتا دوں گا۔ حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ پہلا چاند میں ہوں، آسمان سے اترا، تیری گود میں آیا، اس سے مراد یہ ہے کہ تیری گود تیرا حجرہ ہے، میری قبر تیرے حجرے میں بنے گی۔ دوسرا چاند ابو بکر صدیق آئے گا، تیسرا چاند فاروق اعظم آئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے جہان کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ گنبد خضرا کی جو زمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قبر مبارک ہے، جو زمین کے ذرات آپ کو گود میں لیے ہوئے ہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس زمین کے ذروں کا، اس زمین کے ٹلے کا عرش معلیٰ سے بھی زیادہ بڑا مقام ہے۔ اللہ پاک اگر چاہتا تو بیت المقدس میں قبر مبارک بنا دیتا، اگر اللہ پاک چاہتا تو بیت اللہ میں بنا دیتا، حتیم میں بنا دیتا، مینا میں بنا دیتا، عرفات میں بنا دیتا۔
आसमानों पे किसी जगह पर आपका क़याम हो जाता, जन्नत में क़याम हो जाता। लेकिन अल्लाह पाक जल्ले शानू ने फरमाया, मेरी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और मेरे सिद्दीक की बेटी और मेरे महबूब की घरवाली, मुझे तो तेरे बिस्तर पर, तेरे हुजरे पर इतना प्यार आ गया, इतना प्यार आ गया, इसके मुकाबले की जमीन मेरी जन्नत में कोई नहीं, मेरे आसमानों पे कोई नहीं, मेरी पूरी जमीन पे कोई नहीं। मुझे तो तेरा रहना, मेरे महबूब का तेरी साथ रहना इतना पसंद आ गया, मैं जन्नतों के अलावा अपनी रहमतों की बारिश हर वक्त तेरे हुजरे पे कुर्बान कर दूंगा। इसी को सब कुछ बना दिया, यहीं पर सब कुछ बना दिया। और फिर अगर तवज्जो करेंगे आप हजरात को लुत्फ आएगा। सारी दुनिया कहती है जी मेरी मौत सजदे में आए, मेरी मौत मस्जिद में आ जाए, मेरी मौत कुरान करीम पढ़ते हुए आए, मेरी मौत दुरूद पाक पढ़ते हुए आए, मेरी मौत कलमा पढ़ते हुए आए। सबकी ये आरज़ू तो है ना, कितना ही गुनाहगार हो, कितना ही स्याकार हो, कितना ही बड़ा फासिक हो, फाजिर हो, तमन्ना है मौला आखिरी वक्त कलमा नसीब फरमा दे, आखिरी वक्त कुरान की तिलावत नसीब फरमा दे, आखिरी वक्त दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अता फरमा दे। लोगों की तमन्ना है बैतुल्लाह में मौत आ जाए, मदीना मुनव्वरा की गलियों में मौत आ जाए, आका के शहर में मौत आ जाए। आप सबकी तमन्ना है अच्छी अच्छी जगह मरने की, मौत आने की। क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तमन्ना ना होगी? तवज्जो करो, आपकी भी तो कोई हसरत होगी, आपकी भी दिल की कोई आरज़ू होगी, आपके दिल में भी कोई तमन्ना होगी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की तमन्ना और हसरत हो, अल्लाह पाक पूरा क्यों ना करें? पता चला कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तमन्ना थी मेरा आखिरी वक्त हो तो ऐसा सिद्दीका की गोद हो, सिद्दीक अकबर की बेटी मुबारक हो, तेरी गोद में वफात की, मौत की, आखिरी सांस की तमन्ना सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात सिद्दीक अकबर की गोद में नहीं हुई, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में नहीं आया। मौत का वक्त उस्मान ज़िन्नुरैन की गोद न थी, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद न थी, तलहा ज़ुबैर अब्दुर्रहमान इब्न औफ साद अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में से किसी की न थी। आखिरी वक्त है, उधर इमामुल अंबिया का आखिरी वक्त आया, उधर अम्मा आयशा सिद्दीका की गोद है। यही से अंदाजा लगाओ किसकी गोद में, किसकी झोली में मौत आ रही है। फिर हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल आखिरी वक्त में इरशाद फरमाया, दिल की तख्ती पे लिख कर ले जाओ। फरमाया मेरी आयशा मिसवाक ले आ। आपने लाकर मिसवाक दे दी। फिर फरमाया इसे नरम कर दो, इसे नरम कर दो। दुनिया का कोई मुअर्रिख, कोई मुहद्दिस, कोई इल्म वाला साबित नहीं कर सकता कि हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस मिसवाक को लकड़ी से छेदा हो, पत्थर से कूटा हो, किसी और चीज से नरम बनाया हो। अरे नबी की मंशा अगर आयशा सिद्दीका नहीं समझ सकती तो और कौन समझेगा? हमारी अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस मिसवाक को अपने मुंह मुबारक में चबाया है। आप हज़रत आयशा सिद्दीका ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने मुंह मुबारक में दांतों से चबाया है और फिर पेश कर दिया अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मिसवाक। कोई साबित नहीं कर सकता कि आपने ये फरमाया हो कि इस पानी में धो के ना, तेरे मुंह का लुआब लगा हुआ है, मुंह का थूक इस पे लगा हुआ है, इसे धो के ला। नहीं, धुलवाया नहीं। और सुनो, इस मिसवाक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह मुबारक में फरमाया मिसवाक की। और ये भी जिम्मेदारी से कहता हूं, आपने फिर पानी नहीं मांगा कि पानी ला मैं कुल्ली कर लूं, पानी नहीं मंगवाया, कुल्ली नहीं फरमाई।
दुनिया वालों को ये बता दिया, क़यामत तक आने वाले और मेरे कलमा पढ़ने वालों, मेरी शफाअत की उम्मीद रखने वालों, मेरे हौज़े कौसर के पानी के प्यासों, आओ मैं तुम्हें बता दूं आखिरी वक्त में कि मुझे आयशा सिद्दीका इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी है मेरी, कि मैं आखिरी वक्त में जन्नत में कुल्ली करूं तो करूं, मैं तो इसके मुंह का लुआब भी अपने मुंह में लेके जा रहा हूं। पैगंबरे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक में आयशा सिद्दीका का लुआब गया आखिरी वक्त में। फिर फरमाया मेरी आयशा ठंडे पानी का प्याला तो ले आ। ठंडा पानी लेकर हाजिर खिदमत हुई, पानी लेकर तशरीफ ले आई, अर्ज किया मेरे महबूब पानी पी लो। शायद पानी पिएंगे, किस लिए मंगाया है? फरमाया यहाँ रख दे। रहमत वाला हाथ पानी में भिगो भिगो कर अपने चेहरे अनवर पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छींटे मारने शुरू कर दिए। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मेरा जिगर फटने लगा, मेरा जिगर छल्ली होने लगा। मैंने अर्ज कर दिया मेरे महबूब ये क्या बनी, ये घबराहट कैसी, ये परेशानी कैसी, ये माथे पे पसीने कैसे? यूं फरमाया मेरी आयशा तू नहीं जानती मौत कितनी घबराहट वाली शय है, तुझे मालूम नहीं, तू नहीं जानती। कुरान कहता वजात सकरातुल मौती बिल हक वमा कुंत मिन्हु तहीद। मौत की सख्ती बरहक है, अरे उस सख्ती का तुझे ख्याल कभी नहीं आया, तेरे दिमाग में तसव्वुर कभी नहीं आया। खुदा की कसम ऐसे पसीने आएंगे जो सारी उम्र में कभी ना आए। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है आवाज बिल्कुल पस्त हो गई, आवाज बिल्कुल कमजोर हो गई, सांस बिल्कुल कम रह गया। मैं छाती पे हाथ रखे हुए अपनी झोली में ली बैठी थी, मेरी कायनात उजड़ रही थी, मैं दुनियाई में सब कुछ अपने सामने रुखसत होता देख रही थी। आखिरी वक्त है, बिल्कुल सांस भी बंद हो गया, लेकिन लब मुबारक हरकत करते थे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ हिलते हैं, लब मुबारक तक हरकत करते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं मैंने अपने महबूब के मुंह के करीब यूं कान लगा दिया, सुनो तो सही आखिरी मेरे महबूब क्या फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाती हैं मेरी हैरानगी की हद हो गई, जब मैंने यूं कान लगाया, बिल्कुल मुंह मुबारक के साथ कान लगा दिया तो आवाज आ रही थी रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे। इसकी गोद कितनी बरकतों वाली हो गई कि अल्लाह पाक को इसके हुजरे पे इतना प्यार आया कि जन्नत से बढ़कर उसका मकाम बना दिया, ज़ियारतगाह बना दिया। आज वहीं पर सब कुछ है। जनाब अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कई मर्तबा मैं पूछ लिया करती थी मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरत के कुछ मामलात फरमाओ, मैं बड़ी डरती हूँ क्या बनेगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवाब इरशाद फरमाते थे मेरी आयशा दुनिया में दिल न लगाना, दुनिया को अपना ठिकाना न समझना, ये तो मुसाफिर खाना है, मैं हौज़े कौसर पे तेरा इंतजार करूंगा। ये तो अजीब खानदान है। अल्लाह पाक जिसको नवाजे कौन हटा सकता है, कौन जुर्रत कर सकता है, किसका मकाम है कि उसमें आगे पीछे कुछ। 2000 से ज्यादा रिवायत हदीस पाक की मरवी हैं हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। जालिमों ने उस वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख दिए, इज्जत के दुख दिए,
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक काफिले में क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गईं। वो उठाने वालों को पता न चला, वो डोली उठाकर चले गए। नहीफ कमजोर जिस्म की थोड़ी से बदन की माई थी, कोई पता न चला। सफ़वान बिन ज़कवान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाद में साथ लेकर आए। मुनाफिकीन ने तोहमत उठा दी। लोग बड़े जालिम होते हैं, इल्जाम लगाने वाले दुनिया में इतने हैं कि नबी के घर से भी ना चले, नबी के घर से भी ना चले। उधर कुरान का फैसला है, फरमाया अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसातु लिल खबीसीन। खबीस मर्द खबीस औरत के लिए, खबीस औरत खबीस मर्द के लिए। वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात। नेक मर्द नेक औरत के लिए, नेक औरत नेक मर्द के लिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर इल्जाम बांध दिया, तोहमत बांध कर खड़ी कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बाप के घर पहुंचा दिया। इतना रंज हुआ, इतनी तकलीफ पहुंची। सिद्दीक़ अकबर भी नाराज हो गए आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कि मेरे नबी को तकलीफ पहुंची। परेशानी का वक्त है। हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सारी जिंदगी में इतना बड़ा भयानक वक्त मेरे ऊपर कभी नहीं आया। मैं सर सजदे में रख करके रोने लगी, मौला नबी भी मुझसे बार बार पूछ रही है, बाप भी नाराज है, मैं कहां जाऊं। जमीन मुझे निगल जाती, जमीन मेरा लुकमा बना लेती। ये क्या बना, मैं तू जानता है मैं पाक दामन हूं, तेरे नबी का हरम हो, तेरे नबी के घर वाली हो। और मेरे मौला आज तो ये मेरा मसला बन गया, मेरी आबरू तेरे नबी की आबरू, मेरी इज्जत तेरी इज्जत है, मेरी इज्जत तेरे महबूब की इज्जत है, मेरी आबरू तेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबरू, मेरे नबी की आबरू तेरी आबरू। कौन है मेरा? जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरबार है। चारों तरफ परेशानी है, सहाबा किराम भी परेशान है, मुसलमान परेशान है। ये क्या बनी? अल्लाह पाक जल्ले शानू की तरफ से ऐलान आया, सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। अल्लाह। आवाज आई, मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मेरी आयशा पाक दामन है। और अल्लाह ताला ने यहां तक फरमा दिया, मेरे महबूब आप शक में क्यों पड़े, आप परेशान क्यों हुए? तेरी कोई शादी आपने खुद नहीं की, ये सारी शादियां मैंने की, इनका इंतजाम खुदा कहता मैंने किया। अगर हर आदमी अपने बेटे के लिए इज्जत वाली, आबरू वाली, पाक दामन लड़की लाना चाहता है, अल्लाह फरमाते हैं मुझे अपनी किबरियाई की कसम, महबूब घर तेरा हो और अच्छी माई तलाश करके मैं ना ले आऊं। मैं अगर पाक दामन औरत तेरे घर पे ना लाऊं तो नबूवत पे दाग आ जाएगा। इन्हें तो मैं लाया हूं। फरमाया कुरान मजीद आ गया, मेरे महबूब और लोगों के बारे में गवाहियां लेना, और लोगों के बारे में शहादतें लेना, और लोगों के बारे में तहकीकात करना। पर अबू बकर का सारा घर मेरे जिम्मे है। इस घर पे जब भी कोई बात आएगी, मेरे महबूब तेरी अदालत में मैं खुदा चल कर आऊंगा। सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। खुदा कहता है मेरी आयशा, मेरी बंदी इस इतने बड़े बुहतान से पाक है, बरी है, मैं खुदा गवाह बनकर आया। जब कुरान उतरा, सूरत नूर का दूसरा रुकू उतरा,
हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में तो सिद्दीक अकबर ने भी खुशी मनाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अम्मा कहने लगी, बेटी उठो, अपने महबूब खामिंद का शुक्रिया अदा करो, शुक्रिया अदा करो कि तेरी शान में कुरान उतरा, तेरी सफाई में कुरान आया, तेरी गवाही के लिए अल्लाह का कुरान आया। बड़ी सियानी थी ना। फरमाने लगी, मैं किसी का शुक्राना क्यों अदा करूं, मैंने अल्लाह को सजदा किया, अल्लाह ने अपने कुरान में मेरी बरात और मेरी सफाई की, मैं तो सजदा शुक्र अपने अल्लाह को करूंगी, मैं तो अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी। और सहाबा कराम फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा अगर ना होती तो दीन नाकिस रह जाता, दीन अधूरा रह जाता। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वजह से दीन मुकम्मल हुआ। सहाबा किराम में से किसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा को औरतों पे किस तरह फजीलत है, किस तरह उसका दर्जा ज्यादा है? तो आपने फरमाया, जैसे शरीद खाने को सारे खानों पे फजीलत है, इसी तरह सारी कायनात पर आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फजीलत है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला मदीने पाक में, अल्लाह सबको मदीने पाक की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। बड़ी जगह है मदीना, बहुत बड़ी अजीम जगह है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कई सौ ऊंट माल के लाद कर लाए शाम से मदीने पाक में। मदीने में तंगी थी आटे की, दाने की, शोर मिच गया, माल आ गया, माल आ गया। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, ये माल कहां से आया, कैसा शोर है गली में? किसी ने बताया कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ बड़ा माल लेकर आए हैं, इतने 100 ऊंट लाद कर लाए हैं। आपने फरमा दिया, मैंने सुना है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कि पुल सरात से जब सारा जहान गुजरेगा, सहाबा गुजरेंगे, अंबिया गुजरेंगे, तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी गुजर तो जाएंगे, लेकिन पैर लंगड़ाता लंगड़ाता गुजरेंगे, पैर से लंग करते हुए गुजरेंगे, इसलिए कि मालदार बहुत है। नौज़ुबिल्लाह, अगर हमारा तुम्हारा ऐसा मौका बन जाता, वहीं अकड़ जाते, ले औरतों को क्या पता है, मैं तो अशरा मुबशरा में से हूँ, मुझे हुजूर ने यूं मर्तबा फरमाया, मुझे हुजूर ने यूं दिया। जब अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे बारे में यूं फरमाती हैं कि पुरुष रात से गुजर तो जाएगा, लेकिन पांव से लंग करता हुआ गुजरेगा, मदीने की चौक में अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, और लोगों, मैंने आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान सुन लिया, तुम गवाह हो जाओ, ये सारा माल, ये सारे ऊंट मैंने अल्लाह के नाम पे सदका कर दिया। इतनी कदर की हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फरमान की, इतनी आबदा जाहिदा थी कि फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साल का घर में ढेर लगा दिया हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पैसों का। तो खादमा से फरमाया कि जाओ मदीने की गलियों में ऐलान करके आओ, और हर मोहताज, हर बेवार, हर यतीम मिस्कीन को कह के आओ कि आयशा सिद्दीका के दरवाजे पे आओ, खैरात ले जाओ। लोग आने शुरू हो गए, प्लेट तबाख भर भर कर सबको दे दिया, और पता था कि ये साल का खर्चा आया है फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से। तवज्जो करो, सारा दिन अशरफियां तकसीम की, सारा दिन दिनार तकसीम किए, सारा दिन दिरहम तकसीम किए। जब सब कुछ खत्म हो गया, वो जो खादमा थी ना, कहने लगी, आज रोजा काहे से खोल लोगी? हज़रत आयशा सिद्दीका को कहने लगी, आज रोजा काहे से इफ्तार करोगी? 4 आने का अगर गोश्त मंगा लेती, मैं भी रोजा गोश्त से खोल लेती और आप भी रोजा गोश्त से खोल लेती। हाय हाय, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जवाब देखो। फरमाया, अब कहने से क्या फायदा, तूने उस वक्त याद क्यों नहीं दिलाया, मैं 4 आने का मंगा लेती, अब तो पानी से ही खोल लेंगे रोजा, तू भी और मैं भी। साल भर का खर्चा है हरम नबवी के लिए, साल
जहान की सरदार अम्मा है उम्मत की, और वो इतनी दुनिया से बेखबर है कि घर में अपने रोजा खोलने के लिए खजूर का दाना नहीं, फिर भी अल्लाह के नाम पर सारा तकसीम फरमा दिया। और एक दफा जब वो माल आया अपनी खादमा से यूं फरमाया, मेरे दरमियान और इस माल के दरमियान कपड़ा लटका दे, मैं तो इस माल को देखती हुई भी डरती हूं, क़यामत में इसका क्या जवाब देना पड़ेगा। इतनी आबदा ज़ाहदा थी, और क्यों ना हो, सारे जहान के सरदार की जो घरवाली है वो सारे जहान की औरतों की सरदार है। हुजरा आयशा के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, मा बैना मिंबरी व बैती रियाज़तुम मिन रौज़िल जन्ना। फरमाया, लोगों, अगर किसी ने दुनियाई में जन्नत देखनी हो तो ये मेरे रोजे और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है, ये सारी की सारी जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत का टुकड़ा है ये। तो आपने फरमा दिया, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो हुजरा है वो जन्नत है, वो फिरदौस से बढ़कर है, वो जन्नतुल दारुस्सलाम से बढ़कर है, सारी जन्नतों के सरदार वो जगह और वो टुकड़ा है। आखिरी बात, तवज्जो करोगे तो मजा आएगा। इस हुजरे में 4 कब्र बन सकती थी। एक नबी पाक सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बन गई, 3 कब्रों की जगह थी इस हुजरे में सारी। दूसरी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बन गई। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने ये पक्का इरादा कर रखा था कि ये मेरे महबूब ने फरमाया ये जन्नत का टुकड़ा है, फिर इमामुल अंबिया का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमामुल अंबिया का कुर्ब और जवार, और फिर मेरा तो हक है, मेरा हुजरा, मेरा घर, मैं यहां दफन होंगी, मैं अपनी कब्र यहां बनवाऊंगी। यानी एक तरफ मेरे अब्बा हो जाएंगे, एक तरफ मैं हो जाऊंगी, बीच में महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएंगे। हज़रत आयशा फरमाती हैं, सारी उम्र ये तमन्ना रही हुजूर के वफात से बाद से लेकर, लेकिन जब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहादत के वक्त अपना बेटा अब्दुल्ला बिन उमर को भेजा और ये कह करके भेजा कि जाओ आयशा सिद्दीक़ा से मेरे लिए खैरात मांग के लाओ, भीख मांग के आओ। जब फारूक आज़म ने रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह के नाम पर कब्र की जगह मांगी, यूं फरमाती है जब आयशा, अब मैं फंस गई, अब मैं परेशान हुई। तवज्जो करो, परेशान क्यों हुई? ना और नबी आए, ना और हुजरा बने, ना मुझे ये जगह, ऐसी जगह मिले, ऐसी जगह तो मिल ही नहीं सकती थी। उधर मेरे दिल में ये बात आई कि फारूक जो है वो मेरे महबूब का झोली फैलाकर मांगा हुआ है। साफ जाहिर था, या मुझे अगर इनकार करूं तो नबी का मांगा हुआ महबूब है फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और अगर दे दूं तो मुझे कब्र के लिए ऐसी जगह नहीं मिलती। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मेरी तबीयत ने यह फैसला किया कि फारूक आज़म क़यामत के दिन अल्लाह के नबी से कहीं यह अर्ज न कर दे कि मैंने आयशा सिद्दीक़ा से तेरे पहलू में जगह मांगी थी पर मिली नहीं। फरमाती हैं, मैंने अर्ज कर दिया, जाओ, और किसी को तो ना देती, मैंने अल्लाह के नाम पर, फारूक आज़म के नाम पर, अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में कब्र की जगह जो रखी थी वो भी अल्लाह के नाम पर सदका कर दी। कौन है इन हज़रात की तौहीन करके जन्नत में जा सके? कौन है इनकी? मैं तुम्हें स्टाम्प पर लिख कर दे सकता हूं कि सिद्दीक़ और सिद्दीक़ अकबर की तौहीन करने वाला कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता, उसका ईमान पे खात्मा नहीं हो सकता, सहाबा के दुश्मन के मुंह से आखिरी वक्त में कलमा नहीं निकल सकता। आप सब से एक बात बता दो, फिर दुआ करते हैं। आप लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है? ख्वाब में भी ज़ियारत नसीब नहीं। और हमारा तो ईमान भी सहाबा, हमारा दीन भी सहाबा, हमारा इस्लाम भी सहाबा किराम, हमारा तो सब कुछ वही है। अल्लाह ताला सहाबा किराम की जूतियों के सदक़े में हमें ईमान की दौलत अता फरमाए, और सिद्दीक़ व फारूक आज़म, उस्मान व हैदर, सारे सहाबा किराम की मोहब्बत से हमारे दिलों को भर दे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये बयान? अगर बयान पसंद आया तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक इसे शेयर जरूर करें।